demanding the demolition of an illegal portion of a mosque in Shimla Sanjoli area were lathi-charged by security forces on Wednesday after they broke police barricades during a demonstration. Raising slogans of Jai Shri Ram and Hindu Ekta Zindabad, hundreds of protesters gathered at the Sansi Mandi Dhalli marched towards Sanjoli, defying prohibitory orders and ignoring warnings by the administration to lodge their protest, and broke barricades erected near Dhalli tunnel. As protesters gathered on the call of some Hindu groups entered Sanjoli and broke a second barricade near the mosque, police resorted to lathi charge and used water cannons to disperse them. Police detained some protesters as well, including Hindu Jagran Manch secretary Kamal Gautam, and erected the barricade near the mosque again. But the protesters refused to leave and continued raising slogans against the administration. Many women also joined the protest and recited Hanuman Chalisa at Dhalli before breaking barricades. पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई, हम शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे और आधे से ज्यादा पुलिस वाले जो है बिना नेम प्लेट के हैं। ये सुक्कू की शरेआम गुंडागर्दी है। उठाना हिंदू पे, हम ईमानदारी से चले, हिंदू पे हाथ नहीं उठाएगा, हिंदू पे हाथ नहीं उठेगा। Senior police officials including DGP Atul Verma were at the spot. Vijay Sharma, one of the demonstration's leaders, said the police action has resulted in a volatile atmosphere in the area. Protesters alleged that the government denied them permission to hold peaceful protests and now they are being arrested. They also claimed that some protesters suffered injury in the police action. A policewoman sustained injuries in a scuffle with protesters. देखिए, जो यहाँ पे स्थिति बनी है उसके मद्देनज़र मैसिव डिप्लॉयमेंट हुआ है और वी हैव मेड फुल फ्लेजेड सिक्योरिटी प्लान। तो उसके मद्देनज़र कहीं कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ साथ पब्लिक को भी हम लोग सेंसिटाइज कर रहे हैं कि हर हालत में शांति बनाए रखें और किसी तरह का कोई अगर कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। Amid escalating tension over the unauthorized construction in the Sanjoli area mosque, a Bandh call sounded by Hindu outfits to press for the demolition of the disputed structure. Sanjoli and adjoining areas have been converted into a fortress with heavy police deployment. The Shimla District Administration has issued prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, barring the assembly of 5 or more people and carrying of lethal weapons and arms. जिस प्रकार से संजौली में एक मुद्दा आया था एक अवैध निर्माण को लेकर कि जिस प्रकार से वहाँ पर एक मस्जिद का अवैध रूप से निर्माण किया गया था, वहाँ के शिमला के और संजौली क्षेत्र और आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों के स्थानीय लोगों ने वहाँ पर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। पूरे प्रदेश को एक संदेश गया कि जिस प्रकार से लगातार संख्या बढ़ रही है, अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ सनातन समाज शिमला में एक हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है कि जिला शिमला के सनातनी भाइयों ने। Himachal Pradesh Public Works Minister Vikramaditya Singh appealed for peace and said the state government would take necessary legal action on the dispute around the mosque. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हर चीज़ कानून के हिसाब से करती है और मैंने कल भी अपना वक्तव्य विधानसभा के अंदर बतौर जो है वो यूडी मिनिस्टर दिया है और इसमें विश्वास दिया है कि जो भी कार्रवाई होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 1, एंड नंबर 2 जो ये वाला केस है इसमें जो म्यूनसिपल एक्ट है, क्योंकि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दायरे में आता है, वहाँ पे मैटर सब जुडिस है, तो उसके तहत इसके ऊपर कार्रवाई होगी। The leader of the opposition in the assembly, Jairam Thakur, also appealed to protesters not to defy the prohibitory orders. जो भी प्रदर्शनकारी हैं, प्रदर्शन करना होगा तो लोकतांत्रिक तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें।
जो मूल प्रश्न है कि पिछले 2 सालों में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, जो ऐसे लोगों का नंबर जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, जिनकी पहचान ही हमारे पास है नहीं। कहां से हैं, क्या करते हैं, कहां रहते हैं, क्या उनकी बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, इन सारी चीजों को लेकर के जो हमारी गवर्नमेंट ने एक फैसला किया था, जो जितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन और उनकी वेरिफिकेशन, उस काम को रोक रखा वो सरकार ने। और मुझे लगता है कि अगर वो वेरिफिकेशन और जो सारी रजिस्ट्रेशन होती है तो उससे काफी चीजों को लेकर के एक रास्ता निकल आएगा। और खासतौर से आज के इस कार्यक्रम के सिलसिले में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि शांति बनाए रखें, सबसे मैं अपील करता हूं। और उसके साथ साथ में जहां सरकार की ओर से जो मैं कहूंगा कि वो जो नियम के मुताबिक जो गलत वहां पर कंस्ट्रक्शन हुई है उस पर जो कार्रवाई करने की बात है उसको ज्यादा विलंब ना करें। On Tuesday, Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu said the issue should not be given a political color. इसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का दायित्व है। सौहार्द का माहौल है। संजौली में विरोध प्रदर्शन करना है, सबका अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। हमारी सरकार चाहती है कि किसी प्रकार के किसी समुदाय को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा दायित्व है। आज हमने विधानसभा अध्यक्ष ने एक कमेटी गठन की है कि जो भी जो वेंडर्स स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पैरामीटर्स बनाए जाएंगे कि क्या नियम बनाने हैं, क्या कैसे स्ट्रीट वेंडर्स आएंगे और इस प्रकार के झगड़े ना हो, क्योंकि ये झगड़े से शुरू हुआ है। और जो मस्जिद की बात है, उस मस्जिद में जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, अगर गैर कानूनी है, अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, उस बारे में भी जो अदालत है वो फैसला करेगी। और इस प्रकार की किसी भी वारदात को कानून हाथ में लेने का किसी भी संगठन को अधिकार नहीं है। Hindu organizations demanding the demolition of disputed structure in the mosque and the registration of outsiders coming to the state had given the call for the Sanjoli Bandh on Wednesday. Last Thursday, Hindu groups staged massive protests at the Chaura Maidan here in the vicinity of Vidhan Sabha and Sanjoli to press for their demands.